Session. Hi Priyanka, how are you? Very good, very good. How are you? Good, good. Or how's everything? Let people join, then we can start with the session. Yes, yes. In fact, आज का सेशन तो इतना important है. When I was for the last few months, I have been doing some research on it. It looks like there is so much to which is unexplored about this topic that I wish a lot of girls, a lot of people can join who have women in their families, and it would be, I think, very very interesting. Actually, most of the topic जो भी हम choose करते हैं, they all are unexplored. That is why we choose those मतलब topics. Correct, correct, correct. Or they maybe they are explored in a very conventional way, but the way we want to look at things is कि what are the things कि वो medicine खा खा के भी वो चीजें ठीक नहीं हो रही. We want to look at the root cause कि when people are going to doctors, they are taking medicine, फिर भी असर नहीं हो रहा. And that Correct. is where I think जो युवक की philosophy है, जो युवक की thinking है, that is quite different, and that's why we like to see कि जड़ क्या है. बिकॉज़ जड़ को जब तक नहीं काटोगे, वो पेड़ के 2-4 आपने पत्ते गिरा दिए, फिर आ जाएँगे, फिर बाहर आएगी, फिर पत्ते वापस. So problem remains as it is. And Correct. yeah. So, so people have started joining in. Divya said hello. So guys, keep on commenting so that we know कि आप देख रहे हैं हमें. And if in case you मतलब अगर if you can hear us, please comment yes, yes, yes. Hello. And you can ask us your questions, of course. We have received quite a few questions on Instagram and Facebook. So we will start with those, and then you guys can ask live. Okay, so we can start with the topic. Basically, what exactly is this PCOD? So one question is also that PCOD and PCOS, are they different or the same? So they are primarily the same thing. मतलब एक ही चीज को बोलने के दो तरीके हैं. This is polycystic ovary syndrome या polycystic ovary disease. So मोटा मोटा you can say for all practical purposes they are same. एंड ये होता क्या है बेसिकली. दिस इज इसका जो एक बहुत ही टिपिकल सिम्टम आता है, दैट इज इरेगुलर पीरियड्स. दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम. उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी कितना है, यू विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट मोर सिम्टम्स एज वेल. फॉर एग्जांपल, इसमें हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, इसमें मूड स्विंग्स आती हैं बहुत ज्यादा, इसमें फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं. इस एक टिपिकल इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है कि मेल पैटर्न, मेल मेल हार्मोन जो होता है बॉडी में वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, एंड देन इट कॉजेज अ लॉट ऑफ इश्यूज अदरवाइज एज वेल. सो दिस इज व्हाट इट इज कि जो आपकी ओवरी महीने में एक एग निकालना चाहिए था, नाउ फॉर वेरियस रीजंस व्हिच वी विल डिस्कस इन टुडेज सेशन, वो या तो एक एग की जगह 2-3 इमेच्योर एग निकाल देती है या नहीं निकाल रही है वो एग. सो वेरियस टाइप ऑफ एंड डिफरेंट रीजंस could play a part, like a lot of things that we discuss. It's not like कि एक चीज होती है तब ये होता है, because human beings are very complex people. We do a lot of things, we think a lot of things, and they can have very effect on our reproductive system. So basically irregular periods जो कि बहुत आजकल तो 17-18 years पे ही ये problems बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं. And you will be surprised कि 1 in 3 women, 1 in 3 women, they have this problem, which is extremely high. This has never been the case. This wasn't the case 20 years back, and उससे पहले 20 years तो ये problem ही exist नहीं करती थी. So this is something जो कि एक, you can say it's a gift of modern times, and even गांव में भी पहुंच गई है अभी तो. So 1 in 3 in शहर and 1 in 5 in small towns. So मतलब अभी हर जगह प्रॉब्लम्स पहुंच रही हैं, थैंक्स टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. करेक्ट. सो अभी जैसे कुछ सिम्टम्स आपने बताए दैट इनफर्टिलिटी हो सकती है या फिर हेयर फॉल, तो अगर स्टार्टिंग में इफ समबडी वांट्स टू नो दैट व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स, सो दैट अगर वो स्टार्टिंग में रिकग्नाइज करके दे कैन टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट इट. So the first thing that you will see is irregular periods. So either they 28 days की जगह they are coming very late or very early. So and then there is no one cycle which is happening. See, cycle क्यों होती है फीमेल की बॉडी में? Because जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किए थे, so the three hormones which are there, which is progesterone, estrogen and testosterone. So the sex hormones which are there, they play
अ पर्टिकुलर सिम्फनी, पूरा महीना उनका एक पर्टिकुलर जैसे होता है ना कैरेक्टर का डांस चलता है। पहले पहले कोई नहीं आता सीन पे, देन आफ्टर 7 डेज एस्ट्रोजन की पहली परफॉर्मेंस होती है। सो एस्ट्रोजन की परफॉर्मेंस चलती है डे 7 से लेके अबाउट डे 16-17 तक, एंड देन जैसे ही एस्ट्रोजन को बोला जाता है अभी बैक स्टेज चलो, और प्रोजेस्टेरोन ऊपर आ जाते हैं। सो वो डेज 21 पे आते हैं, और इन द एंड अराउंड डे 28 आपका प्रोजेस्टेरोन एज वेल एज एस्ट्रोजन दोनों के दोनों नीचे चले जाते हैं। और यही कारण होता है कि कुछ-कुछ विमेन के केस में क्या होता है कि जब ये दोनों हार्मोन्स नीचे चले जाते हैं, बिकॉज़ प्रोजेस्टेरोन इज़ द हैप्पी हार्मोन, सो आपको बड़ी खुशी भी देता है व्हेन यू फील वेरी नाइस एंड हैप्पी। सो जब ये नीचे जाते हैं, सो सम काइंड ऑफ एक न्यूरोकेमिस्ट्री होती है जो खराब हो जाती है, तभी उसको क्या बोलते हैं हम, पीएमएस। लोग बोलते हैं कि यू नो ये इनका पीएमएस चल रहा है नॉन, कई बार उसके ऊपर मीम भी बनाते हैं व्हिच इज नॉट द राइट थिंग टू डू, बिकॉज जिनके साथ होता है उनके साथ रियल, सो यू शुड नॉट मेक फन ऑफ, बिकॉज सी राइट, फीमेल की बॉडी में इतने हार्मोन्स है एंड इतना ड्रामा चल रहा है, तो मतलब अभी एस्ट्रोजन अपनी टाइम पे उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, या उतनी देर वो स्टेज पे ज्यादा बैठ गया, यू नो सो मेनी थिंग्स कैन गो रॉन्ग फॉर अ वैरायटी ऑफ फीमेल्स। तो इसके लिए स्पेशली women who go through PMS, it's real for them, and we should be compassionate, and actually this session will help them a lot as well. It's not only for PCOD, PCOS, it's for कि ये ड्रामा ठीक चले, ड्रामा ठीक चल रहा है तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता करेक्ट। एंड सेम वे जैसे आपने पीएमएस बोला, ऐसी मेल के लिए चलता है आईएमएस, है। इरिटेबल मेल, या व्हाट इज इरिटेबल मेल सिंड्रोम। अच्छा इरिटेबल मेल सिंड्रोम, और ये पीएमएस तो उसमें कहा जाता है कि पीएमएस तो फिर भी आपका जल्दी ठीक हो जाता है, आईएमएस 3-4 महीने चलता ही रहता है आपका, क्योंकि मेल का ओके, थोड़ा लंबा हो जाता है। I think वो आजकल male are also looking for, there is so much of feminism going around. There is so much of, Me Too females, and, they're raising voice. Now, men are feeling, भाई हमारा नंबर कब आएगा? अभी वो भी अपनी टर्म्स निकाल रहे हैं, and करेक्ट। So coming to next question, what are the common reason for PCOD? Because you said that there are so many cases, 1 in 3 women in cities and 1 in 5 in even villages. So what is the common reason for this? so surprise, surprise, we have spoken about it quite a number of times. One of Right. the main reasons is processed food. जो प्रोसेस्ड फूड है वो हमारी बॉडी में, जैसे हमने कई सेशंस में अभी तो बात कर ली, किस तरह से वो हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग, हमारे हॉर्मोन्स की फंक्शनिंग, हमारी बॉडी में उनकी जो एडिक्शन क्रिएट होती है, द वे दे प्ले विद अवर डोपामिन एंड सेरोटोनिन, मतलब किस तरह से कंपनीज एकदम परफेक्ट एनालिसिस करती है कि क्या चीज में क्या डोज पे डाला जाए कि आपका एडिक्शन क्रिएट हो जाए ना। ये जो चीजें क्रिएट होती है ना, दे डोंट कम विदाउट देयर कॉस्ट। आपको लग रहा है वो पैकेट के लिए आप खाली 10 रुपए दे रहे हो, 10 रुपए नहीं दे रहे हो, उससे बहुत ज्यादा दे रहे हो। 2-4 आपकी एग्स बर्बाद हो रहे हैं, थोड़े से हार्मोन्स नहीं चल पा रहे हैं, परफॉर्मेंसेस खराब हो रही हैं। सो अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स जो प्रोसेस्ड फूड है ना, बिकॉज़ से बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी को ना वो समझ नहीं आता ये क्या चीज़ है। हमारी बॉडी को क्या समझ आता है? सेब समझ आता है, केला समझ आता है, टिंडा समझ आता है, तोरई समझ आती है, ये समझ आता है। अनाज भी समझ अब आ जाता है क्योंकि बहुत सालों से हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ये जो है ना, ये बहुत ही नए-नए चिप्स ना समझ नहीं आते उसको। प्रिकल्स तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती। ये क्या है और ऐसा ऐसा कैसे होता है कि खाने के बाद वो रुक ही नहीं पाता। मतलब आपने ये प्रिमिटिव ब्रेन की उस केमिस्ट्री का फ़ायदा उठा लिया कि जो चीज़ पुराने टाइम में हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी थी, आज आपने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के वही वाली ड्रग आपने चिप्स के अंदर मिला दी, और उसको आप बोलते हो प्रोप्राइटरी फूड। उसको आप बोलते हो सीक्रेट इंग्रीडिएंट। जैसे होता है ना वो मसाला है, ये मसाला भाई किस चीज का बना है कि ऐसा मसाला हम घर में जो मर्जी कूटते रहे बनता ही नहीं है। तो सबसे बुरा जो इसमें करते हैं दैट इज प्रोसेस्ड फूड। नाउ प्रोसेस्ड फूड में भी पर्टिकुलरली फॉर अभी अगर हम फीमेल हेल्थ की बात करें, इज रिफाइंड कार्ब्स, मैदा, जो आपके इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बहुत इजीली मतलब पच जाते हैं, जो बहुत इजीली शुगर स्पाइक करते हैं। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि जो पीसीओडी है उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो हम कई बार बात कर चुके हैं पहले भी, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मेन रोल है पीसीओडी। नाउ जब आपका इंसुलिन का मैकेनिज्म खराब होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल फंक्शन इकट्ठे खराब होते हैं।
और क्योंकि अभी हम इतने ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हैं, हम गुड क्वालिटी प्रोटीन और फैट खा नहीं रहे, एक ही अपने सिस्टम को ओवरलोड किए जा रहे हैं ग्लूकोज वाली। सो हमारी बॉडी, जैसे हमने पहले भी मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि फैट पे भी चलती है ये और ये ग्लूकोज पे भी चलती है, बट हम सिर्फ कार्ब्स खाते हैं। हमारे फैट्स के नाम पे इवन आजकल आप लोगों को बोलोगे देसी घी खाओ तो उनको लगेगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ बीमार हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। वाह जी वाह, आप जो ब्रेड के इतने सारे पीसेस खा रहे हो उसमें आप मोटे नहीं होगे, और यहाँ देसी घी से मोटे हो जाएंगे। मतलब इतना ज्यादा अभी वो वाइड स्प्रेड हो गए ये चीजें, कि जो ओरिजिनल हमारे थे, कि ओरिजिनल नारियल खा रहे हैं आप देसी घी ले रहे हैं, वो सब चीजें अब आपके पीछे हटती जा रही है, और रिफाइंड ऑयल्स एंड देन रिफाइंड कार्ब्स ये सब सामने आ रहे हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम अपना ग्लूकोज को इतना ज्यादा अब्यूज करते हैं उस सिस्टम को, इंसुलिन रेजिस्टेंस वहां से शुरुआत होती है। और देखने का बहुत आसान तरीका है, अगर आपका एब्डोमिनल फैट बढ़ रहा है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में। अभी गोली खा रहे हो या नहीं खा रहे हो वो बात अलग है, डॉक्टर ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा वो बात अलग है, लेकिन चालू हो चुका है, क्योंकि ऐसा कोई फैट नहीं होता। अगर आप मोटे हो रहे हो तो पूरी बॉडी मोटी होनी चाहिए ना, खाली आपके मिड सेक्शन के मोटे होने का क्या मतलब है? दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्लासिक साइन। और ये जो हमारी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है उसका एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं। और क्योंकि उसमें भी रिफाइंड कार्ब्स, मतलब चलो आप बढ़िया वाले कार्ब्स खा रहे हो, आपने अनप्रोसेस्ड ग्रेन्स खा रहे हो, रागी ले रहे हो, ज्वार बाजरा एंड मिलेट्स ले रहे हो, वो भी ठीक है, उसमें कुछ इतना नहीं है, लेकिन अब उसको भी अब पीस पीस के सारा उसका अच्छा छिलका निकाल दिया, कुछ बचा नहीं, व्हाइट राइस एकदम, तो मतलब देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो यू हैव टू हैव अ बैलेंस इन योर मील्स एंड प्रोसेस्ड फूड को, जो कि फूड नहीं है, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स को, लेट्स कॉल देम प्रोडक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। सो इसी में एक क्वेश्चन जैसे आता है, जैसे इंसुलिन जब भी हम सुनते हैं तो नॉर्मली भी मतलब उससे जो हमारा वो निकलता है इन्फ्लुएंस, इट इज लाइक कि शायद ब्लड शुगर का जो हम टेस्ट कराते हैं दैट इज इंसुलिन की चेक करते हैं उसके अंदर। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट होता है, और इज इट मतलब कैसा कैसे इसको पता कर सकते हैं हम? सो टेस्ट तो मैंने आपको बताया, आपका पेट बाहर आएगा, टेस्ट हो गया, क्यों हाँ, पैसा ये बर्बाद तो कर ठीक रहे है, ये तो हो? ऑलमोस्ट सबका ही बाहर आ रहा होता है। नहीं नहीं, ये तो सबको है, बहुत लोगों को है। मैंने बोला ना बट पीसीओडी में आपको 1 in 3 में है, दैट इज वेरी कॉमन। सेम वे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बहुत कॉमन है आज की डेट में। सो सब आपको इतना टेस्ट वेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। विसरल फैट, पेट अगर आपका बाहर आ रहा है पूरे बॉडी के प्रपोर्शन से ज्यादा, बॉडी ठीक है पेट बाहर है, आपको है। एंड उसका एक क्लासिक, आप अपनी डाइट को देखिए, अगर आपकी डाइट ऐसी है विच इज हाई इन प्रोसेस्ड कार्ब्स, विच इज हाई इन कार्ब्स ओवरऑल, एंड देन यू हैव वेरी लिटिल गुड प्रोटीन एंड गुड फैट गोइंग अराउंड। सो गुड प्रोटीन जैसे कि आपके लेग्यूम्स हो गए, नट्स एंड सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सो मेनी थिंग्स वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट। गुड आपके गुड फैट्स लाइक देसी घी, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, कोकोनट, सेसमे, बहुत सारी जितनी भी, मैं तेल की बात नहीं कर रही, जिनसे तेल बनता है उन चीजों की बात। सो लाइक तेल, उसके ऊपर वी हैव अ सेपरेट डिस्कशन अबाउट तेल एंड नॉट तेल, बट जो ओरिजिनल सोर्सेज ऑफ फैट है, जैसे कि नट्स है, काजू है, दुनिया भर की जैसे बादाम है, all those things are good fats and some of them have proteins as well, so good proteins के लिए research कर लिया। सो अगर आपकी डाइट में गुड प्रोटीन, गुड फैट और फाइबर नहीं है, तो बचता क्या है? बाजार का कार्ब्स, या ज्यादा से ज्यादा सिंपल कार्ब्स। तो आपको वो देखना है कि डाइट में बैलेंस क्रिएट करें। मैं ऐसा नहीं कह रही सारे कार्ब्स खराब है, जैसा कि पहले भी कई बार ये मैंने रिपीट किया, तो प्लीज डोंट स्टार्ट डिमोनाइजिंग, अब बनाना भी नहीं खाएंगे और ये भी नहीं खाएंगे, एप्पल भी, इसमें भी कार्ब्स है। सी, आपको बैलेंस करना है, एक चीज के पीछे नहीं पड़ना। और अभी क्या है, व्हाई वी आर सेइंग कार्ब कार्ब सो मच, बिकॉज मेजॉरिटी प्लेट्स दैट आई सी ऑल द टाइम आर फुल ऑफ कार्ब्स, ऑलमोस्ट जीरो प्रोटीन एंड गुड फैट कैसा होगा, वो तला हुआ आ गया वो फैट, उसकी बात नहीं करती। ओरिजिनल रॉ फैट इज कॉल्ड फैट, वो जो तल लिया, जिसको आपने सब्जी में भून के ऐसा उसका धुएं निकाल निकाल वाला, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ फैट, लाइक नारियल, लाइक बादाम, लाइक पीनट्स, लाइक सेसमी, लाइक बेसिक, दिस इज रॉ, या लाइक एवोकाडो, दीज आर रॉ। सो हम उनकी बात,
टूट-टूट के वो फिर एक अलग कहानी लग जाएगी या वो एक डिफरेंट स्टोरी। करेक्ट। तो ये तो आपने सारी बात की डाइट की। तो साइड बाय साइड कुछ लाइफ़स्टाइल में भी चेंजेस इंक्लूड करने चाहिए हमें टू टैकल पीसीओडी, पीसीओएस? Definitely. See, कोई भी चीज़ diet doesn't exist as a solo thing. हुँ, And one of the main reasons for PCOD apart from the diet part is हुँ, toxin overload. So हम जितने plastics use कर रहे हैं, हुँ, a lot of the cosmetics that we have, हुँ, a lot of the herbal skincare products that we have हुँ, are full of toxins. हुँ, इसका बहुत सिंपल टेस्ट, जैसे हमने पिछली बार बात की थी आपके डिटर्जेंट्स एंड ऑल को लेके, आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को देखिए, पीछे घुमाइए, इंग्रेडिएंट्स जितने समझ, यदि इंग्रेडिएंट समझ नहीं आते, दैट मीन्स गड़बड़। हुँ, सिंपल होना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतनी इंग्लिश आज की डेट में हम सबको आती है। समझ हुँ, आ रहा है, यस, समझ नहीं आ रहा, नो। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेट आवर लाइफ। आप कॉस्मेटिक्स के जो ब्रांड हैं, उसके आप इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, वो लोग तो लिखते भी नहीं है। वेबसाइट पे जाके देखो, समझ आ रहा है, यस, समझ नहीं आ रहा, हुँ, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। एंड इसमें ये जो टॉक्सिन्स हैं, दे पर्टिकुलरली विद फीमेल्स, एक तो फीमेल्स प्रोडक्ट्स भी ज्यादा यूज करती हैं, उनको हुँ, स्किन केयर ज्यादा है, देन सी, बट इफ यू रियली लुक एट द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, कभी आप ऐसा देखते हो कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, तकरीबन तकरीबन ऐसा तो नहीं आपको लग रहा होता कि वाइफ बहुत यंग है और हस्बैंड बहुत ओल्ड है, ऐसा आपको दिखता है कभी? आप कपल्स को इतने अराउंड आप देखते हो, तो अगर तो वो स्किन केयर प्रोडक्ट से जवान होना चाहिए था, हुँ, तो हमेशा हस्बैंड वाइफ की एज में आपको तो 10 साल का डिफरेंस दिख रहा होना चाहिए। करेक्ट। नहीं, मेरे टिपिकली इससे बचपन में एक ऐड आती थी, वो मुझे याद आ गई। क्या? आपको याद होगा कि हेलो अंकल, हेलो दीदी, आपको एक बचपन में ऐड आती थी, आपको वो याद आ गई होगी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो वो जो चीज है, लाइक यू डोंट सी दैट ऑफन, हुँ, लाइक कि आपको हस्बैंड और वाइफ की एज में 10 साल का फर्क दिख रहा है। टिपिकली दोनों ही या तो यंग लग रहे होंगे, दोनों ही या तो ओल्ड लग रहे होंगे, दोनों ही या तो थोड़े से, मतलब आपको वो सिमिलर सिमिलर दिखने लग जाते हैं कुछ समय बाद, इफ दे आर लाइक दे हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हिच गोज ऑन टू शो कि अगर स्किन केयर प्रोडक्ट से ही सब कुछ होना था, तो वाइफ और हस्बैंड में अलग अलग दिखना चाहिए, but that's करेक्ट, not true. Many करेक्ट, a times the similarity in the looks come because of their similar lifestyle. क्या होता है, दोनों लोग खाना सेम खाते हैं, अनलेस ऐसा है कि भाई एक आदमी बहुत सैलेड्स खा रहा है, दूसरा नहीं खा रहा, होता हुँ, क्या है कि आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स रबिंग ऑन द अदर पर्सन। इफ यू हुँ, आर स्टेइंग टुगेदर, धीरे धीरे एक दूसरे का लाइफस्टाइल स्टार्ट्स, यू स्टार्ट शेयरिंग। तो स्किन केयर प्रोडक्ट लगा के ही अगर आपको वो एंटी एजिंग होनी थी या गुड स्किन होनी थी, तो ये डिफरेंस नहीं नजर आना चाहिए था। हुँ, एंड सेकेंडली, वेरी सिंपल थिंग, आपको वो इंग्रेडिएंट टेस्ट, अब हमने आपको बता दिया, इंग्लिश इतनी आपको आती है, समझ आ रहा है तो वो अच्छा है, समझ नहीं आ रहा तो अच्छा है। एंड हुँ, टॉक्सिन्स के अलावा वन ऑफ अनदर मेजर थिंग्स जो कि फीमेल हार्मोनल सिस्टम में पर्टिकुलरली गड़बड़ करती है, वो है प्लास्टिक। नाउ हुँ, प्लास्टिक क्या होते हैं, उनके अंदर ना एक एस्ट्रोजन के जैसा लुक अलाइक होता है, वो क्या हुँ, बोलते हैं, बैक्टीरिया। हुँ, सो वो सिस्टम में घुस जाता है, जब हीरोइन को बुलाया जाता है, वो कहते हैं मैं ही हूँ हीरोइन। सो वो जो आपकी ओरिजिनल एस्ट्रोजन का जब टाइम आता है, कि जब आपकी मंथली साइकिल में सेकेंड वीक में जब ओरिजिनल एस्ट्रोजन का टाइम आता है, वो अपनी एंट्री दे देता है कि मैं हुँ, हूँ। सो अब क्या होगा, अब वो वाली एंट्री पे कुछ रियल काम तो होगा नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक बाय योर ओवरीज। उनको तो समझ आ जाएगा, तो नकली आदमी है, हुँ, ये तो हमारे वाला है ही नहीं। तो इसीलिए जो प्लास्टिक्स, खासकर प्लास्टिक्स में भी बेस्ट चीज तो ये रहेगी कि अगर हम मिनिमाइज करें, जितना हो सके मिनिमाइज करें। एंड उसके बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक, एब्सोल्युटली नो नो नो। हुँ, माइक्रोवेव में जब आप प्लास्टिक के बर्तन रख के करते हो, नो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली उसको फेंक दो। ज्यादा से ज्यादा उसको रखना ही है तो कुछ सफाई की चीजें रखने के लिए इस्तेमाल कर लो, जिसमें आप करेक्ट, अपना टॉयलेट वगैरह साफ करते हो ना, वो बर्तन उसमें रखो, वो चीजें उसमें रखो, अदरवाइज प्लास्टिक का कोई काम नहीं। हुँ, और इसमें कैसे होता है, इवन हमारे सारे सेल्स में
नॉट जस्ट योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट बाकी भी जो बॉडी में सेल्स है ना, वो भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब दे कैन रीड कि बॉडी में एस्ट्रोजन कितनी आई, कितनी नहीं आई, बाकी जो हार्मोन है वो उनको रीड करते हैं। अब जब इस तरह के नकली एस्ट्रोजन घूम रहे होंगे सिस्टम में, तो इसका इफेक्ट खाली आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं आता। वो जो एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल जो कि नकली एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल है, जो एक्टिव तो करते हैं, पर जब उनकी परफॉर्मेंस का टाइम आता है, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। वो क्या करते हैं, आपके सेल्स में जहां पे वो गेट होता है ना, जहां से एस्ट्रोजन जाती है, उनका साइज बड़ा होता है, वो गेट को ब्लॉक कर देते हैं। ना होता क्या है कि अब वो सेल ब्लॉक हो गए, अब उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट जाने का रास्ता भी इन्होंने रोक दिया। तो इस तरह से ये जो नकली आर्टिस्ट घूम रहे होते हैं बॉडी के अंदर, ये आपकी जो सेल्स है, जहां से आपके न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जहां से आपके विटामिन आते हैं, जहां से आपकी अच्छी चीजें वो सेल की ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए आती है, ये डोर ब्लॉक कर देते हैं। अब डोर ब्लॉक हो गया तो आप सोचो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारी आ सकती है। सिर्फ दिमाग के अगर वो सेल्स थे, डोर ब्लॉक हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। दिल के जो सेल्स थे, डोर ब्लॉक हो गया तो क्या क्या होगा। लिवर में डोर ब्लॉक हो गए तो क्या होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन किस जगह का डोर ब्लॉक कर दिया और कहाँ पे वो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल जाके फंस गए, आपकी वहां पे उतनी प्रॉब्लम होंगी। सो प्लास्टिक इज समथिंग जो आई नो हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, एंड जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ स्मॉल स्टेप्स खासकर जो लेते हैं। खाने पीने की चीजें हैं उसमें अवॉइड करना चाहिए। सिंगल यूज को एकदम बाहर फेंक दो। जितना हो सके आप उसकी जगह दूसरे बर्तन इस्तेमाल कीजिए। आप कांच के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील के कर सकते हैं, अच्छे वाले आई कुड शोइंग सम ऑफ द कांसा बर्तन भी है, आयरन भी कर सकते हैं। बहुत सारी और चीजें आती हैं जो पॉसिबल है, लोग करते हैं। थोड़ा सा एक बार का माइंडसेट चेंज की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है आप सीधा सोचोगे प्लास्टिक कितना ज्यादा है मेरे घर में, हाउ विल आई डू इट, तो आप अभी गिर जाओगे, आप बोलोगे नहीं नहीं ये लोग तो फालतू की बातें करते हैं। लेकिन आप ये कर सकते हो कि मे बी एक दिन में 2-3 जगह से हटाते बस। ऐसा कर करके अगर आप देखोगे ना, विद इन 1 मंथ आपके घर का सारा प्लास्टिक निकल गया। एक दिन में पूरा निकालने का मत सोचो। सी उसको आने में सालों साल लगते हैं, जाने में कुछ महीने तो लेगा। ऐसे थोड़ा ना निकल जाएगा, सीधा निकालोगे तो पूरा निकल जाएगा। तो इसके लिए जब इतना टाइम उसके साथ रह लिए, थोड़ा सा और रह लो, बट हैव दिस माइंडसेट कि आई वांट टू स्लोली स्लोली टेक इट। करेक्ट। तो इस पे एक क्वेश्चन मेरे पास है, जैसे लास्ट टाइम आल्सो यू मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट दैट 21 टैबलेट जो आती हैं, एंड अभी जैसे आपने बताया एस्ट्रोजन जो बहरूपिया हमारी बॉडी में आ जाता है, एंड देन वो 21 टैबलेट्स आई थिंक यू सेड कि आई थिंक वो एस्ट्रोजन का एक फॉर्म होता है जो कि आपकी बॉडी को फील कराता है, जैसे समथिंग आपने ऐसा उसमें बताया था डिटेल में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी अभी अब आपको अगर पीसीओडी आपकी फैमिली में किसी को भी है और वो लोग डॉक्टर के पास गए, सो टिपिकल दवाई जो पीसीओडी के लिए मिलती है वो होती है वो 21 डेज की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। करेक्ट। दैट इज व्हाट यू गेट। नाउ आपने डॉक्टर से ये तो पूछा ही नहीं कि मुझे हुआ क्यों। हो गया आजकल हो जाता है, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, बिग पिक्चर इतना बड़ा जिसका आपको अब कोई आंसर मिलना नहीं, आप बोलोगे अच्छा दवाई दो यार। आप सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हो, चलो बिग पिक्चर में नहीं जाते, सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हो ये दवाई करती क्या है मेरी बॉडी में, वो दवाई है क्या। वो प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है ना। वो दवाई आपकी बॉडी को उल्लू बनाती है 21 दिन तक कि आई एम प्रेग्नेंट। इसके लिए वो नया एग रिलीज नहीं करती। तो वो 21 डेज तक आप उससे लाइक यू नो बॉडी को एक तरह से भ्रम कर रहे हो, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या होता है उसको 21 डेज के बाद जाना पड़ता है नीचे, अगर इफ यू आर नॉट प्रेग्नेंट। अदरवाइज प्रोजेस्टेरोन की साइकिल होती है, 2 हफ्ते तक नहीं चलता, तीसरे हफ्ते में ऊपर आता है। पूरा टाइम ऊपर तो रहता है प्रेगनेंसी में। तो आपने एक प्रेगनेंसी लुक अलाइक क्रिएट कर दिया 21 दिन के लिए, और फिर जब ही 21 दिन हो गए अब आपको लगता है कि चलो अभी होना चाहिए, तो देन आपने उसको स्टॉप किया एंड देन बॉडी को लगता है ओह नो नॉट प्रेग्नेंट अगेन, तो वो आपकी मंथली पीरियड आ जाता है। सेम थिंग अगले महीने आप फिर से उल्लू बनाते हो, वो फिर उल्लू बनती है। फिर आपने बोला प्रेग्नेंट है, वो खुशी बनाने लग जाती है, पूरी बॉडी के सिस्टम्स चेंज करने स्टार्ट कर देती है। अगेन यही होता है, फिर तीसरे महीने फिर वही होता है। अब आपने वो कहानी सुनी होगी बचपन में, भेड़िया आया, आप बार बार करते, एंड में क्या होता है,
जब जब अपने सच में में आता है मीडिया आता है तो वो बोलते हैं मैं नहीं हूँ, हुँ, आई एम नॉट अवेलेबल नाउ। तो हुँ, अब क्या है कि आपने इतनी बार उसको उल्लू बना दिया कि हुँ, प्रेग्नेंट है, वो बेचारी हर महीने प्रेग्नेंट के लिए तैयार खड़ी है। हुँ, अब जब सच में आप कहते हो कि प्रेग्नेंट है, तब वो हुँ, बोलती है ना, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, तो मुझे इस बार फिर से उल्लू बनाओगे। हुँ, तो इसके लिए क्या होता है, मतलब सी ऑफ कोर्स लाइक हमने जिस तरह से ये बताया है इट्स अ लिटिल फनी बट सी इट्स वेरी सीरियस एज वेल, हुँ, क्योंकि दैट इज व्हाई आजकल आप देखो इनफर्टिलिटी के केसेस कितने बढ़ रहे हुँ, हैं, एंड दैट इज व्हाई आपके आईवीएफ क्लिनिक्स जो है अभी वो हर गली मोहल्ले में खुलने लगे हैं। करेक्ट, नाउ द रीजन फॉर दैट इज, पहले एक रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग फूड हैबिट्स के कारण आप एक बीमारी लेते हो, देन उस करेक्ट, बीमारी का इलाज इस तरह से करते हो, वही भेड़िया आया वाला इलाज कर देते हो, हुँ, फिर बॉडी कहती है अभी मैं नहीं कर पाऊंगी, बहुत तुमने मुझे उल्लू बना दिया। फिर धीरे धीरे तो समझ ही जाती है ना, थोड़े दिन ही बनती है उल्लू। फिर जब आप सच में उल्लू नहीं भी बना रहे होते हो तो वो फिर बहुत दिन तक इसी भ्रम में रहती है कि उल्लू बना रहे हो। हुँ, सो इसीलिए फिर वो आईवीएफ क्लिनिक एंड ऑल दोस थिंग्स स्टार्ट। हुँ, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप वो जो टैबलेट्स हैं उनको हुँ, लंबे टाइम तक लो। कभी एक आध महीने कुछ रेगुलर करने हैं आपको और वो डॉक्टर ने दिया है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट इफ यू लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ इट, डू हुँ, यू थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू? सी वो हुँ, प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन, इट्स एज सिंपल एज दैट। करेक्ट, प्रोजेस्टेरोन आपकी बॉडी में कंटिन्यूअसली वो डांस करता है, पहले नीचे से ऊपर, कंटिन्यूअस बड़ा होता है सिर्फ एक स्टेट में, प्रेगनेंसी की स्टेट में। हुँ, आप वही स्टेट क्रिएट करते हो 21 दिन तक और बार बार धोखा देते हो। हुँ, तो डू यू थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू? ऑब्वियसली नॉट, हुँ, सो एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। हुँ, और तो फिर उसके बाद हमें उसके परिणाम जो होते हैं वो भुगतने पड़ते हैं। हुँ, And इसमें see, बहुत सारे जो आपके लाइक, आई अंडरस्टैंड समटाइम्स वी नीड मेडिकेशन फॉर आवर हेल्थ एंड ऑल दोस थिंग्स, बट आई ऑलवेज लाइक टू बिलीव कि जब बॉडी हमारी बनाई है नेचर, सी दिस इज अ बॉडी दैट हैज बीन देयर फॉर 2 लाख years, हुँ, राइट? तो अगर हमारी बॉडी इतनी कमजोर होती थी ना कि उसको इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से वो गिर जाती, तो ये स्पीशीज खत्म हो जानी चाहिए। हुँ, ये स्पीशीज इतनी कमजोर नहीं है कि मेडिकल नहीं आया तो ये बंद हो गई। एंड हुँ, इनफर्टिलिटी इज दैट थिंग विच इज सेइंग कि स्पीशीज बंद हो रही है, हुँ, राइट? सो ओके, वन में आर्ग्यू कि ऐसा क्या कर रही है ये स्पीशीज जो इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, बट स्टिल लाइक एक तरह से आप देखो बायोलॉजिकली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड करेक्ट, क्योंकि हम लोग a lot of things which you see, जैसे पीसीओडी में हमारा एंड पीसीओएस में आपको एक, the implication is also a little bit societal। आप हुँ, सोच के देखो, आज की जो फीमेल है, क्या आज से 50 साल पहले जो फीमेल की लाइफ में जो चैलेंजेस थे, हुँ, क्या आज वो चैलेंजेस बढ़ नहीं गए? हुँ, तब फीमेल टिपिकली जैसे होता है ना, घर में आप बच्चे देख रहे हैं, आप घर देख रही हैं, आप किचन देख रहे हो, अपना घर संभाल रहे हो, टिपिकली दैट इज व्हाट यूज्ड टू हैपन। करेक्ट, अब क्या होता है, अब फीमेल बाहर के भी सारे काम कर रही है, लेकिन बाहर के काम करने से ऐसा नहीं है कि उसको बच्चे नहीं देखते हैं, हुँ, उसको वो भी देखने हैं। उसके किचन में क्या बन रहा है उसको वो भी देखना है। तो वो तो हुँ, करने ही करने हैं, और नए वाले कुछ और करने हैं। तो हुँ, जो स्ट्रेस है, एक्चुअली वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन आवरसेल्व्स एंड वी हुँ, नीड टू गो अ लिटिल इजी। सी हुँ, इतना ज्यादा हम लोग बोले कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। आप कोई झांसी की रानी, सी झांसी की रानी भी खाली मैदान में झांसी की रानी थी, हुँ, 24 घंटे 12 महीने झांसी की रानी बने रहना, आपकी बॉडी उसके लिए नहीं बनी। करेक्ट, एक दूसरा क्या होता है, कई बार जैसे अगर हम इस चीज को एक बार फिजिकल लेवल से थोड़ा सा मेंटल लेवल की तरफ अगर हम जाते हुए देखें इस चीज को, हुँ, आप हर चीज में ये बोलते हो मुझे बराबरी करना, आप हर चीज में ये बोलोगे जो मेल के लिए है मेरे लिए सेम राइट्स है, मैं मना हुँ, नहीं करती हूँ, लेकिन आप अलग हो, वो अलग है। हर हुँ, चीज सेम कैसे हो सकती है? आप बोलोगे जो इसका वही मेरा, जो ये होगा वही मेरा होगा, कैसे? वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, आप कर सकते हो। हुँ,
और अगर आप इतना माइंड को सारा टाइम ये करते रहोगे कि मुझे यही लेवल पे आना है, मैं लड़कियों की तरह पीछे नहीं रहूंगी, लड़कियां पीछे नहीं है, वो अलग हुँ, है, सूरज सूरज है, चांद चांद है। हुँ, अभी चांद बोलेगा मैं भी सूरज बनूंगा, सूरज बोलेगा मैं चांद बन जाऊंगा। तो क्या होगा? आप सोच के देखो कि हमारे इकोसिस्टम का क्या होगा अगर सूरज चांद बन गया या चांद सूरज बन गया। पहले जब वो चांद पास होंगे ग्रहण तो लग ही जाएगा। ग्रहण लग जाएगा। तो वही है, आप क्योंकि आप अगर अपनी बॉडी से ये कह रहे हो बार बार, मैं किसी मेल से कम नहीं हूँ, मैं किसी मेल से कम नहीं हूँ, तो क्या होगा? बॉडी बोलेगी ये लो मेल हार्मोन, बोलेगी जो हुक्म मेरे आका, वो यही कर रही है, तुम मेल से कम नहीं हो, बढ़ा दिया उसने मेल हार्मोन। सो आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली रीजन, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन अपार्ट फ्रॉम बैड डाइट टॉक्सिन्स एंड दिस। सो थोड़ा हमें अपनी लाइफ को वो झांसी की रानी की मोड़ से नीचे आना करेक्ट। एंड मतलब अब जैसे तुम बोल सकते हो कि यू नो ये क्या दकिया न्यूसी बातें हैं और क्या ये तुम एमडी थी नोमुरा में अभी इतने सारे और काम कर रहे हो, सी बट आप काम करो, बॉडी झांसी की रानी के मोड में नहीं रहनी चाहिए, शांति से काम कर लो, जितना वो कर लो, नहीं हुआ मत करो, समझ रहे हो? मतलब अपने आप को इतना पुश मत करो कि बॉडी बोले ठीक है क्या बनाऊं बताओ, ये बनना है, लो। सी तो तुम देखो, तुम उसके अंदर देखो, मेल आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स आने लग गए जो कि नहीं आते थे, राइट? जो मेल के साथ चीजें हो रही है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस और वो सब चीजें आपके साथ होने लग गई। सो थोड़ा सा हमें अपनी लाइफ में रिलैक्स होने की जरूरत है। और अपनी जो आप अपने आप में बहुत स्पेशल हो, जितना भी चाहे जो मेल है वो फीमेल की तरह खूबसूरत नहीं दिख सकते, राइट? बट और टू बिकम अ मेल, तुम अपनी जो ब्यूटी है, अपनी जो चीजें हैं उनको एंजॉय करो, हुँ, बी यू नो यू कैन बी अ वेरी गुड फीमेल, मतलब व्हाट्स रॉन्ग। तो करेक्ट। आप कहने का मतलब है बराबरी नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह रखते हैं, जैसे कि सन एंड मून, एंड जैसे कि उन दोनों की लड़ाई देख के आप सोचोगे क्या बकवास है, सेफ है, ये वही है, हुँ, इट इज दैट इलॉजिकल, क्योंकि ये अगेन यू नो हो सकता है कभी मेरे भी ऐसे वो रहे हों, लेकिन जब आप अपनी बायोलॉजी को देखते हो ना, जब आप अपने सेल्स को देखते हो, जब आप अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उसके अंदर घुसते हो, वो तो फीमेल है और वो फीमेल की तरह ही रहना चाहती है, वो मेल नहीं बनना चाहती। तो दैट इज व्हाट आई थिंक, एक जो सोसाइटी लेवल पे भी थोड़े थोड़े यू नो इवन पेरेंट्स के लिए भी, इवन आपके घर में जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी, एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले इन दिस, हुँ, एंड एवरीबडी नीड्स टू नो कि मतलब हम सबको यू नो हम जो हैं उसमें कैसे खुश रहें, उसमें हुँ, कैसे बहुत अच्छा करें, दैट इज द मीन। करेक्ट, राइट। So we will just take last question from here, and उसके बाद we will start taking question from the comment section. So guys, keep on asking question in comments. We will send you one beautiful gift hamper. आपको हम जो आपको प्रियंका के पीछे बुक दिख रही होगी, मास्टर शेफ नानी, जिसमें 75 बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज हैं, उसका किंडल वर्जन आपको हम सेंड करेंगे टू 2 लकी विनर्स। एंड सो So कीप ऑन anybody who thinks कि healthy food cannot be tasty need to have this book। जिसको भी ऐसा लगता है ना जो हेल्दी फूड खाते हैं उनका क्या लाइफ, वो जैसे लोग सोचते हैं कि लाइफ कब जिएंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं होता इस फूड में, बहुत टेस्टी होता है। आपने कभी टेस्ट लिया किया, आपको बनाना नहीं आता, आप बनाना सीखिए, आप दूसरे पे वापस नहीं जा पाओ, या जाओगे भी ना तो आपको मजा नहीं आएगा, अब बोलोगे मेरा वाला ठीक। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जैसे हम मतलब जैसे हम युवा में ऐसे होलिस्टिक अप्रोच देखते हैं, तो हमने फूड की बात की, लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की। सो क्या योगा और मेडिटेशन भी हेल्प करते हैं पीसीओडी पीसीओएस को क्योर करने में या प्रिवेंट करने में? बिल्कुल, मैंने अभी आपको इतना सारा वो झांसी की रानी वाला एपिसोड बताया, डू तो यू बेसिकली थिंक? स्ट्रेस फैक्टर पे राइट काम करेगा वो। एग्जैक्टली, स्ट्रेस तो आप देखिए हर चीज के रूट में घुस गया, जैसे कि हम्म, पिछली बार हमने बात की थी, एंड आई विल जस्ट टेस्ट योर नॉलेज नाउ, कि पिछली बार हमने बात की थी तीन छोटे प्लेयर्स हैं, विच इज प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, विच आर द हाँ, सेक्स हॉर्मोन्स। हम्म, इसमें बड़े भैया कौन थे? बड़े भैया थे स्ट्रेस। नहीं, स्ट्रेस तो मम्मी थी। इंसुलिन, इंसुलिन कचरा खाया वो बड़े भैया थे,
जो कचरा खा खा के जिनकी आपने हालत खराब की वो थे बड़े भैया। हम्म, उसके ऊपर आते हैं पापा जी। हम्म। पापा जी कौन थे? पापा जी आपको बताने पड़ेंगे मुझे। सुन- मुझे सारा कंसेप्ट याद है उसमें। सुनते ही है दिखाता हूँ। चलो गेस्ट से हम सबसे पूछते हैं। चलो पहले आप ना 2 हाँ मिनट आप वेट करो। हाँ, अपने हम गेस्ट से पूछते हैं, जितने भी सारे लोग व्यूअर्स हैं, अब इसका जो उनको आंसर पूछते हैं। देगा ना उसको प्राइज मिलेगा इस बार। चलो उनको पक्का इसके प्राइज़ बाकी मिलेगा। के क्वेश्चन के प्राइज मिलेंगे, जो आंसर देगा ठीक उसको मिलेगा। स्ट्रेस तो सबसे ऊपर था। सबसे ऊपर नहीं, स्ट्रेस था, मम्मी जी कौन थी? पापा थे, मम्मी उनके ऊपर थी। मम्मी कौन थी जो स्ट्रेस को भी मैनेज करती थी, वो मैं सोच रहा हूँ। वो मेरे को गेस्ट लोग हेल्प करेंगे, सारे व्यूअर्स हेल्प करेंगे। हाँ, उसको प्लीज़ प्राइज हेल्प। मिलेगा। जो पापा जी और मम्मी जी का सही नाम बता देगा उसको प्राइज मिलेगा। हुँ, तो गेस्ट देखते प्लीज़ हैं ना, हेल्प करो। तो आज हमारे पुराने व्यूअर से जो लव, ढंग से लव, सुन। लव। ऋचा जी ने बताया लव, प्यार। हाँ, लव थी मम्मी जी, तो हुँ, सिर्फ प्यार हो गया तो सब कुछ नीचे वाले लव, सब लोग ध्यान दे देंगे। लव हार्मोन मम्मी बताइए, दिव्या जी ने हाँ, बताया। ऑक्सीटोसिन, हाँ, लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन, दैट्स फाइन। सो रिचा जी गेव हाँ, अ गुड आंसर। ऑक्सीटोसिन। आई वांट टू रिचा जी हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड हाँ, ऑक्सीटोसिन मुझे याद आ गया। प्यार की कैसे हम उसमें वो बढ़ाते हैं उसको, राइट। देखो, प्यार कुछ लोग इग्नोर ही कर देते हैं ना, या वो मास्टर हार्मोन है, उसको आपने इग्नोर कर दिया और छोटे छोटों के पीछे भाग रहे हो, उनकी गोलियां खा रहे हो। अब प्यार हुँ, की तो कोई गोली आती नहीं है, वो कोई खिला दे तो बड़ी अच्छी बात। राइट। ठीक है जी। एंड जो पापा जी थे वो थे हमारे स्ट्रेस हार्मोन विच इज कॉर्टिसोल। पापा स्ट्रेस थे, मम्मी लव थी, मम्मी लव थी। ऑक्सीटोसिन, करेक्ट। राइट। आई होप हमारे एंड पापा वाइफ का मम्मी, इंसुलिन। कहीं पापा मम्मी ना देख रहे हो, वो ऐसा ना सोचे पापा स्ट्रेस थे मम्मी लव थी। भाई आपके लिए नहीं है मम्मी पापा, ये एक एग्जाम्पल है। राइट, ठीक है। करेक्ट। सो इसमें क्या है कि जो स्ट्रेस है, तो जब आप स्ट्रेस को ठीक करते हो तो नीचे की बहुत सारी फंक्शनिंग ठीक होती है। लव हुँ, ठीक नहीं होगा, लव से तो स्ट्रेस ठीक ऊपर वाला नीचे वाले को ठीक कर सकते हैं। सो हुँ, लव तो सबको ठीक कर देगा, हुँ, स्ट्रेस लव को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन इंसुलिन को, अगर स्ट्रेस को आप रिड्यूस करते हो तो हुँ, इंसुलिन को वो ठीक कर सकता है, और इसके नीचे के ये जो आपके एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन है, इनको भी ठीक कर सकता है। फिर इंसुलिन स्ट्रेस को नहीं कर पाएगा क्योंकि स्ट्रेस उसका पिताजी है। बच्चा हुँ, पिताजी को नहीं पैदा कर सकता, पिताजी कर सकते हैं। सो हुँ, अगर इंसुलिन जो है आपका, आपने स्ट्रेस ठीक किया तो वो ठीक हो जाएगा, बट आपने खान पान ठीक किया तो नीचे वाले सारे हार्मोन्स ठीक चले जाएंगे। हुँ, करेक्ट। तो समवॉट लिटिल बिट रिवर्स रिलेशन भी होता है, बट वो कम है, ऊपर से नीचे का बात है। एंड एनीवे, लव इज फ्री, एनीबडी कैन बी इन लव, सो दैट्स द इजीएस्ट एंड द फ्रीएस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। मुझे याद आ गया जब आपने ये बताया था तो मैंने पूछा था लव से ही तो स्ट्रेस हो जाता है कई-कभार। नहीं, वो मैं गलत कर रही हूँ, नहीं, नहीं, कोई मतलब गलत की बात नहीं, रेफरेंस से याद आ गया। बात नहीं, मुझे रेफरेंस से याद आ गया, मुझे अब याद आ गया पूरा। अब क्या फायदा, अभी तो रिचा जी प्राइज ले चुकी है। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देन व्हाट आर द मेन कॉजेज। अब हम ये, क्योंकि सारे मोस्टली क्वेश्चन सारे कवर्ड ही होंगे, बट वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस। आप उसमें वन लाइनर में ठीक कवर कर सकते हैं। एंड देन उसमें किसी टॉपिक में आप चाहते हैं कि ज़्यादा बताना, तो यू कैन जस्ट कंटिन्यू। एंड है। इफ यू थिंक कि हमने वो पॉइंट कवर नहीं किया है। तो So, Sada Shivaji is asking, what are the main causes of PCOS? तो पीसीओएस के जैसे मेन कॉजेज में जो बड़े-बड़े हैं वो तो हमने मेंशन करे थे कि डाइट है, टॉक्सिन्स है, बट आई विल आल्सो मेंशन 2 और 3 मोर कॉजेज जो कि आजकल बहुत कॉमनली पीसीओडी के कॉजेज हैं। वन इज डेयरी, वी हैव डन अ सेशन ऑन डेयरी। तो अगर आपकी डेयरी प्योर नहीं है, मतलब दूध जो आपके पास आता है वो हार्मोनली मिक्स्ड है। आप सोचो, दूध कब आता है? जब वो फीमेल प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा करती है। सो अगेन उसके अंदर जो हार्मोन्स उसको बार बार प्रेग्नेंट करने के लिए डाले जाते हैं, दीज आर द बेसिकली सेक्स हार्मोन्स। एंड जब आप दूध के थ्रू वो हार्मोन्स देते हैं, दूध के थ्रू वो हार्मोन्स अपने बच्चों को देते हैं, तो अगेन उसमें काफी ज्यादा पीसीओडी इज वन ऑफ द कॉजेज फॉर दैट। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, योर गट हेल्थ। अगेन, हो सकता है आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, बट आपका अगर गट ठीक नहीं है, सो देन आपके गट में प्रॉपर माइक्रोबायोम नहीं है, प्रॉपर बैक्टीरिया नहीं है, जो कि उस खाने में से बढ़िया चीजें निकाल सकते हैं। आपके बहुत सारे गट माइक्रोबायोम आपके हार्मोन बनाने का भी काम करते हैं। तो अगर आपका गट गड़बड़ है तो इवन इन दैट केस यू कैन हैव पीसीओडी एंड पीसीओएस।
एंड अनदर थिंग जो कि बहुत कॉमन है इज इफ योर सर्केडियन रिदम्स आउट ऑफ पैट, रात को लेट सोते हो, सुबह लेट उठते हो, अब उसको पता नहीं आता कई बार, और स्पेशली पूरा टाइम स्ट्रेस में रहते हैं और लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो आपके जो ब्रेन के पार्ट्स है ना, जैसे वो बोलेगा मेरे को समझ नहीं आ रहा दिन है कि रात, रात में रेस्ट होता है, ये रेस्ट नहीं है तो ये दिन चल रहा है, फिर सुबह भी दिन आ गया, तो उसको समझ नहीं आता कि दिन है, रात है, सुबह है, शाम है। तो क्योंकि आपने देखा कि फीमेल बॉडी में जब हार्मोन्स है वो ऑर्केस्ट्रा की तरह बढ़िया चलना चाहिए, जरा भी टाइमिंग गलत हुई, कोई आगे निकल जाएगा, कोई पीछे निकल जाएगा, नाटक में कभी लड़के की जगह लड़की आ जाएगी, लड़की की जगह लड़का आ जाएगा, एंड ऑल कंफ्यूजन विल हैपन। सो सर्केडियन रिदम स्टार्टिंग विद अर्ली मॉर्निंग सनराइज टू आपने खाना ठीक से खाया और रात को आप टाइम से सो गए, दैट हैज अ बिग रोल। In fact, that alone again can do a lot of wonders, even if you just set your circadian rhythm right. तो ये जो है सम ऑफ द अदर कॉजेज। एंड एक चीज है जो कि आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है विच इज लाइक आपके वेजाइना वॉशेस, सो मेनी पीपल यूज इट, सो मेनी पीपल। आपको क्या लगता है कि जब ये स्पीशीज बनी थी, अगर वो डिओड्रेंट वाले वेजाइना वॉशेस नहीं आते तो आपके इतनी भी ताकत नहीं है आपकी बॉडी में कि उसको क्लीन कर पाएगी। इनफैक्ट दोस वॉशेस जब भी आपने वो वॉश किया, सोचो 2-4 एग्स और खराब कर दिए, हर राउंड के साथ 2-4 एग्स जा रहे हैं, एंड उसमें इतने केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में खाली गट के अंदर बैक्टीरिया नहीं है। हमने बात की थी कि बच्चे को पहला जो बैक्टीरिया मिलता है कहाँ से मिलता है, वेजाइनल कनाल से मिलता है, आपकी स्किन पे, आपके माउथ में, आपके टंग पे, आपके आपकी बॉडी में बैक्टीरिया पूरी कॉलोनीज हर जगह है, except for a few places जो sanitized है, but there are a lot of bacteria in fact हमारी बॉडी में for every 1 human cell there are 10 bacteria cells। so इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए, तो उनको हम बार बार उनको चेंज करते रहे, जहां वो बेचारे कॉलोनी बसाते हैं उसको जाके डिस्ट्रॉय कराते हैं, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल। इतने जब आप इस तरह के काम करोगे तो आपकी जो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं ना, जो प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया, वो आपकी सेना थी जिसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर होएंगे फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, फिर उसके लिए अलग दवाइयां लगाओ, फिर वो वाली दवाइयां नई कॉलोनी, फिर वो फिर बसने की कोशिश करेगी, फिर आप डिस्ट्रॉय कर दो उसको, मतलब वो बोलेगा भाई तुम किसकी टीम से खेल रहे हो। Correct. So all those things, so there are so many things we are doing. Stick to the nature as much as possible if confused. Correct. अब हम आते हैं मतलब नेक्स्ट तो नहीं क्वेश्चन। आता, वो नहीं आता, बोलो नहीं आता, जैसा चल रहा चल रहा। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाशिवा जी पूछ रही है, होम रेमेडी फॉर पीसीओएस एंड कैन पीसीओएस बी क्लियर्ड विदाउट मेडिसिन? पीसीओएस की कोई मेडिसिन है ऐसा तो मुझे पता ही नहीं। आई डोंट थिंक देयर इज अ मेडिसिन फॉर पीसीओएस, पीसीओडी दैट इज ओनली वो टेम्परेरी बॉडी को प्रेग्नेंट जो फील कराती है वो वाली मेडिसिन है। पीसीओडी तो फिर अगली दिन वापस आ जाता है ना, ऐसा तो नहीं है आपने दवाई खाई उसके बाद आपकी ओवरीज नॉर्मल बन हो गई अगले महीने से। दवाई मेडिसिन क्या होती है कि हमने कुछ खाई, हमको फीवर हुआ था, हमने थोड़ी सी दवाइयां खाई, 4 दिन हो गए, फीवर बंद, मेडिसिन खत्म, दैट इज कॉल्ड लाइक मेडिसिन जो फॉरएवर चलती है। वो तो बस सिम्टोमेटिकली बेवकूफ बना रहे हो, थोड़े दिन बेवकूफ, अभी हम, अभी ये, अभी ये। तो मेरे हिसाब से पीसीओडी की कोई मेडिसिन तो है नहीं, जो है और जिसको किया जा सकता है वो है आपका लाइफस्टाइल, प्रोसेस फूड अवॉइड करने हैं, टॉक्सिन्स को कम करना है, सर्केडियन रिदम ठीक करनी है। आप बोलोगे बहुत सारी चीजें हैं, मैं ये पूछती हूँ आपके पास रास्ता क्या है? आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। दिस इज द कॉस्ट वी आर पेइंग, दिस इज द कॉस्ट सो मेनी विमेन आर पेइंग फॉर अ रॉन्ग लाइफस्टाइल। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। आपको अपनी हेल्थ सुधारने के लिए अच्छा खाना खाना है, अपनी बॉडी को ताकत देनी है, टॉक्सिन्स कम से कम तो कर दो, पूरे जीरो नहीं कर सकते, कम कर दो और बॉडी को शक्ति दे दो कि थोड़े से टॉक्सिन आए तो उसको निकाल दे। जैसे लिवर का तो काम ही है टॉक्स को छलनी है, टॉक्सिन्स निकालता है। आप लिवर को जो चीजें सपोर्ट करती हैं जैसे कि क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, गोभी है, बंद गोभी, फूल गोभी, शलगम, ये सब चीजें जो है ये लिवर को बहुत सपोर्ट करती हैं, वो खाओ ताकि जो थोड़ा बहुत गया, अब सारे टॉक्सिन तो जीरो नहीं कर सकते, वो निकाल दे, बॉडी की शक्ति बढ़ाओ,
तो अगर आप अपना खान-पान ठीक करते हो, थोड़ा बहुत मेडिटेशन या स्ट्रेस रिडक्शन की आप टेक्निक्स को लेते हो, वर्कआउट्स करते हो, तो दीज थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। एंड मेन थिंग, लव का ध्यान रखते हो, झांसी की रानी सारा टाइम नहीं बनती। ये चीजों का ध्यान रखोगे, पीसीओएस ठीक हो जाए। टाइम लगता है, इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि पहले महीने से ही ठीक हो जाए, 4-6 महीने लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितनी पुरानी है। फिर जितनी पुरानी हो चुकी है, जैसे अभी हमने बहुत सारी बात की, अगर आपने खाली एक ही चीज के गिल्टी हो, प्रोसेस फूड के, तो थोड़ी जल्दी ठीक होएगी। आप बोलोगे प्रोसेस फूड भी है, टॉक्सिक भी है, वेजाइनल वॉशेस भी है, डेयरी भी है, मतलब और सर्केडियन, रात को सोते भी नहीं है, लेट सोते हैं, झांसी की रानी भी बने हुए हैं, तो टाइम लगेगा ना भाई, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता दूसरा है नहीं। जो आपकी दवाई है टेम्परेरी सोल्यूशन है, और वो टेम्परेरी सोल्यूशन भी ऐसा है कि बाद में जब सच में आपको प्रेगनेंसी की जरूरत पड़ेगी तो वो उस टाइम हाथ खड़े कर देगी कि मुझे पता है मेरी आया चिल्ला रहे हो। करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दिव्या जी का। इफ समवन डज नॉट हैव एन इरेगुलर पीरियड, डज शी हैव पीसीओडी? वेरी अनलाइकली, बिकॉज वो फर्स्ट साइन होता है एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइन है। बट अदर साइंस विच एग्जिस्ट आर, अगर आपके फेशियल हेयर की ग्रोथ हो रही है, राइट, अगर आपकी जैसे हेयर फॉल एक चीज होती है, वो तो कई कारणों से हो सकती है, बट ऑलमोस्ट जैसे मेन को होती है ना बॉल्डनेस, वैसी बॉल्डनेस आ रही है। और दूसरा क्या है कि जब आपने टेस्ट कराया तो उसमें आपके जो मेल हार्मोन है वो ज्यादा है। बट अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल है तो अनलाइकली, मतलब उसके बाद अगर कोई और प्रॉब्लम है, वो किसी और कारण से हेयर फॉल होगा। अनलाइकली कि पीरियड्स एकदम नॉर्मल है और फिर भी है, दो मतलब इसके लिए आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन लीन वुमेन, दोस हु आर नॉट ओवरवेट, जैसे आपने बताया था कि पेट के अराउंड फैट आ जाता है, also have PCOD, and if so, how can they manage their symptoms through lifestyle changes? बिल्कुल हो सकता है। ऑफ कोर्स इसमें वेट वेट गेन जो होता है टिपिकली वो पीसीओडी के साथ कई बार देखा जाता है, क्योंकि वेट गेन अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में आएगी, तो वेट गेन भी आता है साथ में। इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ पीसीओडी भी आता है। हो सकता है दोनों आ गए, हो सकता है एक ही आया आपको, लेकिन ऐसा कहना ये गलत होगा कि सिर्फ फैट वुमेन में ही आएगा, और अगर वो थिन है तो नहीं है, जरूरी नहीं है। दिस इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स, दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स। द मेन सिम्टम इज इरेगुलर पीरियड्स, या अगर फेशियल हेयर आ रही है और आपके ब्लड टेस्ट में दिखेगा कि मेल हार्मोन ज्यादा है, और अगर वो है तो जो अभी हमने पूरी डिस्कशन देखी, वो सारी चीजें, जैसे अगर हम अपनी डाइट ठीक, सी इट्स फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, हमें तीनों पे काम करना। एक पे सिर्फ काम करोगे और बाकी दोनों को छोड़ दोगे, मतलब आपने जिम जाना तो शुरू कर दिया, ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, 1 साल से भागते जा रहे हो, ठीक है? डाइट में कुछ चेंज किया नहीं, और आपके झांसी की रानी का स्टेटस भी वही है। इनफैक्ट व्हाट विल हैपन नाउ, झांसी की रानी वाली जो प्रॉब्लम है बढ़ जाएगी, क्योंकि कितना भाग रहे हो। वो बोलेगा पहले जिंदगी में भी भाग रहे थे, अभी ट्रेडमिल में भी भाग रहे हो, मैं क्या करूं, कितना भागूं? तो अगेन यहाँ पर हमको तीनों चीजों का बैलेंस लेके चलना है। मुझे अपनी वर्कआउट्स पे भी काम करना है, वर्कआउट्स में नॉट जस्ट कार्डियो, खासकर पीसीओडी में सिर्फ कार्डियो नहीं, कार्डियो इज वन स्मॉल कंपोनेंट, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वो साथ आएगी उसके, कम से कम 2 से 3 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, 1 दिन कार्डियो, ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब 2/3 1/3 या 75% और 25%, ये रेशियो पे आपके वर्कआउट्स हैं। डाइट की अभी हमने बात की, कैसे हम हर बार बात करते हैं रेनबो डाइट, देन आपका विटामिन डी बराबर होना चाहिए, वो आप जरूर चेक कीजिए, बहुत लोगों का कम होता है। आपकी ओमेगा 3 जो कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड, वॉलनट, फैटी फिश में भी होता है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड हमारे देसी घी में भी होता है, जो जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। देसी घी में डीएचए, मतलब जो इजीली एब्सॉर्बेबल फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 वो होता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली कोरिलेशन। सी अभी सब लोग बोलते रहते हैं फिश ऑयल, फिश ऑयल, फिश ऑयल। आप सोचो कि यार हमारे इतने सारे पूर्वज, राइट, आयुर्वेद कितना पुराना, उसमें कितने लोग थे जिन्होंने फिश, जो वेजिटेरियन थे, राइट, उनका ब्रेन कम था। इतने ऋषि मुनि थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, कहीं से आपको उनके पास सिम्टम लगता ब्रेन कम था?
देसी घी। सो बहुत सारी चीजें जो हमारे कल्चर पे छुपी हुई है। अब हम इतने मॉडर्न हो गए, फिरंगी लोगों की चीजें सुनेंगे, अपनी भी सुनेंगे, तो फिर क्या होगा, प्राइस पे करेंगे। और Correct. So next question is, can lifestyle changes like exercise and diet completely replace medication like birth control pills or metformin in all cases? Is this true for managing more severe symptoms? सो सिम्टम आपके जितने भी ज्यादा या कम हो, आपको उसकी रूट कॉज पता होनी चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस की। आपको ये भी पता है कि वो जो पिल्स हैं वो सिर्फ एक सिम्टम को टेम्परेरली ठीक कर रही है, विद अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स दैट विल कम लेटर। बिकॉज कॉमन सेंस से आप ये बात देख सकते हो, बॉडी को बेवकूफ बनाना अच्छी बात नहीं है। डू यू थिंक दैट्स अ गुड थिंग? डिड यू आस्क योर डॉक्टर कि डॉक्टर ये दवाई काम कैसे करती है, थोड़ा बताओगे? पूछो ना। आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ, जाके पूछो डॉक्टर से, डॉक्टर ये वर्क कैसे करता है, थोड़ा समझाओगे? डॉक्टर बोलेगा तेरे पास टाइम नहीं, और समझाने बैठेगा तो आंसर यही है कि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा दिया, आपको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट हुआ, बॉडी को लग रहा है। तो क्या ये करना ठीक है? तो वो दवाई मत खाओ उसको, वो एक टेम्परेरली सिम्टम मैनेजमेंट टेक्निक है कि हाँ जी ये ऐसे भी चल जाता है, ऐसे धागा बांधो, टाइट हो जाती है एक बार। अब कितने दिन करोगे? तो इसका रास्ता जो है, सिम्टम बड़े हैं कि छोटे हैं, लाइफस्टाइल से होकर ही गुजरता है, कोई ऑप्शन ही नहीं। अगर पीसीओडी है तो आपको मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ तीनों पे काम करना ही होगा, तभी वो ठीक होगी। अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज टेम्परेरी। थोड़े दिन के लिए करेगी, फिर बड़े वे में वो वापस लेगी। और द गुड पार्ट इज, अनलाइक मेडिसिन जो साइड इफेक्ट के साथ आती है, यहाँ पे जब आप ये चीजें करोगे ना, जब आप अपनी डाइट ठीक करोगे, आपको लगता है वो सिर्फ पीसीओडी पे काम करेगी, आपकी स्किन पे भी काम कर देगी, हेयर पे भी काम कर देगी, फ्री, कुछ नहीं कहना पड़ेगा, अपने आप कर देगी बिना बोले। यहाँ तो जैसे हमें सिम्टम आते हैं इसके पीसीओडी का, हेयर फॉल सिम्टम आया, आपने शैम्पू लगाया, हेयर फॉल शैम्पू नया लेटेस्ट बताओ कौन सा आया, लाओ हेयर फॉल शैम्पू, फिर पिंपल्स निकल आए। आई अंडरस्टैंड आपको पिंपल्स के साथ रहने की जरूरत नहीं है, फिर एंटी पिंपल आपने क्रीम्स लगाई ऊपर ऊपर। सवाल करो बाल क्यों झड़े, सवाल करो कि पिंपल क्यों आए, अंदर से आए हैं, ऊपर से नहीं आए हो। और जब आप ये ठीक करोगे ना, तो आपके कई सारे और सिम्टम्स, जैसे कि टायर्डनेस, जैसे कि आपका मन नहीं लगता, ऑफिस में भी प्रोडक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी साइड बेनिफिट आएंगे फ्री में, तो यूज देम। अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है एंड आपको क्वेश्चन फटाफट से आंसर देने पड़ेंगे आपको अब। ठीक है, ओके, वन लाइन आंसर्स। हाँ, वन लाइन आंसर। बीच में एक कमेंट भी आया हुआ है, ब्यूटीफुल लेडी केम विद अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच। So next question is there any link between milk consumption and PCOS PCOD? यस, स्पेशली इफ योर मिल्क इज मिक्स्ड विद हॉर्मोन्स। अगर आपके पास अपनी गाय है, या आपको पूरी श्योरिटी है कि आपकी डेयरी जो है वो हॉर्मोन्स नहीं मिक्स करती, गाय खुश रहती है, उसके बच्चे को पिला दिया, उसके बाद दूध आपके पास आ रहा है, तो ठीक है। अदरवाइज दूध छोड़ने से ही, मैं ये नहीं कह रही दूध में कुछ नुकसान है, मतलब लाइक ओरिजिनल दूध में नहीं, ओरिजिनल दूध ठीक है अनलेस आपको सूट ना करे, बट इतनी मिलावट है कि वो मिलावट कम होने से बॉडी क्लीन हो जाती है। करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी लिंक बिटवीन, आपने क्वेश्चन कवर कर रखे होंगे बट एक लाइन में आंसर दे दीजिएगा आप। इज देयर ए लिंक बिटवीन स्ट्रेस एंड पीसीओडी इवन आफ्टर मेकिंग पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस, कुड स्ट्रेस स्टिल वर्सन सिम्टम्स? इसमें क्या होता है, जैसे हमने 3 एस्पेक्ट बात की है, हमारा जो व्हील है उसके अंदर 3 चीजें हैं, जैसे 1/3 आपका है मेंटल हेल्थ, 1/3 आपका है सोशल हेल्थ, और 1/3 आपका है फिजिकल हेल्थ। आपने 2 पार्ट्स फिक्स कर दिए, गाड़ी घूमेगी नहीं घूम पाएगी, पहिया पूरा करना पड़ता है, और फिर उसके बाद उससे एरोप्लेन बन जाता है। तो पहिया पूरा करो और फिर स्पीड देखो, लेकिन आधे अधूरे पहिए के साथ होते रहोगे, मैं डाइट कर रही हूँ, मैंने कीटो भी कर ली, मैंने एक्सक्यूज मी माय फोन इज तो या कहने का मतलब कि आप एक जस्ट, हाँ, श्योर श्योर। तब तक गाइस कीप ऑन कमेंटिंग, आप जल्दी जल्दी आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अभी तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। या सो यस,
सो कहने का मतलब कि हाँ, पहिया पूरा करना पड़ेगा, तभी सर्कल फिनिश होगा और फिर एरोप्लेन बना लो, बॉडी ऐसे चलेगी, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेन कॉजेज ऑफ पीसीओएस आपने कवर कर लिया है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई अंडरस्टैंड दैट इरेगुलर पीरियड्स आर a common symptom of PCOD, but can someone with PCOD still have regular periods? ये भी आपने कवर कर लिया दिव्या जी के क्वेश्चन में। बिना मेडिसिन के अगर रेगुलर हो गए हैं पीरियड्स, बिल्कुल 28 डे की आपकी साइकिल चल रही है या थोड़ा प्लस माइनस 2 डेज की चल रही है, बिना मेडिसिन के, उसको रेगुलर बोला जाएगा। जो मेडिसिन के साथ है वो तो बेवकूफ बनाने वाला काम चलेगा। The next question is, does having a cyst in the ovary that needs to be removed through operation is PCOD? सो टिपिकली उसमें सिस्ट होते हैं, तभी वो आपकी जो पीसीओडी है उसकी शुरुआत में ये आते ही हैं, एंड तभी तो हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। सो मल्टीपल सिस्ट है आपकी उसके अंदर, लेकिन ऐसा देखा गया है जब आप लाइफस्टाइल चेंजेस करते हो तो वो जो सिस्ट का साइज है वो धीरे धीरे छोटे होने लग जाते हैं, एंड देन अगर है भी आपको तंग नहीं करेंगे। ये कई जगह फाइब्रोसिस में भी देखा गया, फाइब्रॉइड्स होते हैं लोगों को, उनके साइज रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं या वो तंग करना बंद कर देते हैं। नाउ दे आर नो मोर बॉदरिंग। सो है और लाइफस्टाइल चेंजेस से वो नीचे होते हैं, और वो तो मेन क्राइटेरिया है ना पॉलीसिस्टिक, तो वो सिस्ट है, बीमारी के नाम नहीं। नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है, कितने प्यार से आप समझाते हो, काश हमारे डॉक्टर भी इतने प्यार से समझाते। तो नेक्स्ट है, सो जैसे आपने बस कहा समझ जाओ। अब ये है, अगर समझ जाओगे और फिर अपने चेंज करके मुझे बिफोर आफ्टर दिखाओगे तो दैट विल बी यू नो आई वुड फील मच मोर हैप्पी दैट वे। करेक्ट। सो जैसे आपने बताया पीसीओएस एंड पीसीओडी आर ऑलमोस्ट सेम, बट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देम? ओके, हमारे मतलब के लिए कुछ नहीं है उसमें। राइट। कैन आई स्टिल हैव ठीक कैसे करना है उस पे करो ना। Can I still have PCOD, PCOS symptoms even after taking medication for years? वो तो कोई नहीं, वो मेडिसिन ने क्या किया, वो मेडिसिन कौन सी मेडिसिन, आपने ठीक करने की मेडिसिन ली है तो वो तो होती नहीं है। आपने बॉडी को बेवकूफ बनाने वाली मेडिसिन ली है, उससे तो इनफैक्ट सिम्टम जब बाद में वापस आएंगे ना तो बढ़ के आएंगे। वो जब आपकी पेरी मेनोपॉज एज आएगी, आपकी मेनोपॉज एज आएगी, तो ये सारा पुरानी भरपाई का टाइम आने का, तो वो तो पेमेंट करनी पड़ेगी, खाली उतनी फीस नहीं है उस डब्बे की। I think next question may issue say that 4,000 per month medicines taken but not cured. Side effects of PCOS like delay in pregnancy, conceive problem, ये सारी प्रॉब्लम के बारे में बताया हुआ उन्होंने अपने उसके उसमें। Then natural remedies के बारे में आपने बात की है that हम कैसे कर सकते हैं। Can women still get pregnant after getting PCOD, PCOS? Yes, a lot of women get pregnant with PCOS, PCOS, and स्पेशली अगर वो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो इवन वो जर्नी में जो कॉम्प्लिकेशन आनी होती है वो भी आपकी कम होनी शुरू होता है। बट ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए कि विमेन की जो बायोलॉजी होती है वो एक पर्टिकुलर वे में बनी है, आपको जो करना है आप करते रहो, बट बायोलॉजी जो कहती है आपके अर्ली 20s इज द बेस्ट टाइम फॉर बिकमिंग अ मदर। बाय द एज ऑफ 30 आपके 90% एग्स जा चुके हैं। बाय द एज ऑफ 30, बाय द एज ऑफ 40 दिस नंबर इज 97%। सो अगर आपको लेट प्लानिंग करनी है तो आप उसमें यू नो यू कुड डू वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स, बट अगेन दैट्स गोइंग अगेंस्ट बायोलॉजी। करेक्ट। ओके, देन अब आपको वन लाइनर आंसर देने पड़ेंगे सिर्फ, ओके, क्योंकि फिर हमें विनर भी बताना है। कैन पीसीओडी, पीसीओएस लीड टू अदर हेल्थ इश्यूज लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज? डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड वो बीपी कोलेस्ट्रॉल सब में आएगा। ओके, सो हाउ डू पीसीओडी, पीसीओएस अफेक्ट फर्टिलिटी, ये आपने बता दिया है। इफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ टॉक्सिन, हाउ कैन वी मेक द राइट डिसीजन अबाउट स्किन केयर प्रोडक्ट्स? सो आप इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, सिंपल समझ आ रहे हैं वो वाले ब्रांड के लोग, जिसके नहीं समझ आ रहे हैं। ओके, स्ट्रेस का नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कवर कर लिया है। देन डू हाई ओबेसिटी एंड थायराइड इफेक्ट दिस? ये सब ना इंटर रिलेटेड है, पूरी कॉकटेल है। थायराइड इज अनदर हार्मोन, और हाई ओबेसिटी में टिपिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रखी होती है। सो ये जो आती है ना बीमारियां, अगर आप उसके रूट कॉज पे नहीं जाओगे तो आप यहाँ से, जैसे वो पाइप फट रहा है, आप यहाँ से उसको टेप लगाओगे, वो कहीं और से फटेगा, उसको टेप लगाओ, फिर तीसरी जगह टेप लगाओ, तो धीरे धीरे क्या होता है, बीमारी की खान बन जाते हैं। करेक्ट। तो कोई भी बीमारी अकेले नहीं आती, भाई बंधु पूरा परिवार आता है उसका, आके आराम से खाता है आपके यहाँ। ठीक है, आई थिंक अब लाइव सेशन हमारा एंड हो जाएगा, शायद हम विनर भी अनाउंस नहीं कर पाएंगे।
बट फटाफट से अनाउंस कर देते हैं। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ऋचा जी ने, तो एक तो उनको अनाउंस आंसर, कर हाँ, जिसने आंसर ठीक दिया था उसको वो विनर है। देते, एक तो ऋचा और विनर होगा अगली बार बिकॉज की, पिछली बार की कुछ मैं क्वेश्चन जरूर लाऊंगी। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू डिसाइड विनर, की जो सुन रहा है वही विनर है ना। एक आपने आपको कहा था ना, हमने लास्ट टाइम जब, अभी आई थिंक लाइव चल रहा है उसके अंदर अभी भी, बट एक आपने कहा था हर बार हम एक नई चीज बताएंगे जो आप छोटा सा चेंज कर सकते हैं। तो आज आप कुछ बता दीजिए जल्दी से फटाफट 1 मिनट के अंदर। सो एक चीज आप कर सकते हैं कि जैसे हमने बात की सर्केडियन रिदम की, जिस भी हम्म, टाइम आप सोते हो, सी आइडियली यू शुड बी स्लीपिंग बाय 10, आइडियली, राइट। हम्म, बट अभी मैं आपको जल्दी सोने को नहीं कह रही, मैं हम्म, सिर्फ इतना कह रही हूँ, सोने से 1.5 घंटा पहले हम्म, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करो, ताकि जब सो कम से कम चैन से तो सो। करेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रियंका जी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। गाइस अपने कमेंट डालना वीडियोस में, एंड इस वीडियो को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर विद समवन आपको लगता हो जिनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड नेक्स्ट वीक आपको हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर टॉपिक। So thank you so much, Priyanka, and we थैंक will यू, meet next week. थैंक Okay, यू, बाय bye bye. बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय। लव वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, लव, सीरियस Love. लव, Toxin release सीरियस करें। लव गोइंग अराउंड हियर। बाय।